In last lecture, we have discussed about the triangular factorization method, correct? The triangular factorization method for finding solution of system of linear equations. Okay, today we will discuss example on that method. Okay, examples on the triangular factorization method. Okay, so देखो example first, solve by triangular factorization method solve by triangular factorization method ओके यहाँ पे LU डिकम्पोजिशन भी आ सकता है, LU डिकम्पोजिशन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग LU डिकम्पोजिशन. ओके, तो LU डिकम्पोजिशन इज नथिंग बट द ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन, बोथ आर सेम. ओके, तो एग्जांपल क्या है देखो, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 2x2 plus 3x3 is equal to 4. Second equation 4x1 minus 2x2 4x1 minus 2x2 plus x3 is equal to 9 plus x3 is equal to 9, and last equation x1 plus 4x2 x1 plus 4x2 सॉरी 5x2, यहाँ पे 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 3 is equal to 3. Now look on the board. This is your system of linear equation. We have to find the solution of this equation by using the triangular factorization method. Okay, or by using the LU method. Both are सेम. ओके, तो देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. आल्सो द नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3. x1 x2 x3. ओके, योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3. ओके, नाउ solution in solution given system of equation is, or given equations are given equation, this is your given equation. Okay, this is your given equation. This belongs to given system is Ax is equal to b. This is your Ax is equal to b. Suppose this is your equation first. Given system of equation belongs to Ax is equal to b. Okay, now here A is a coefficient matrix. Here capital A is equal to coefficient matrix 2 2 3 4 minus 2 1 1 5 4. ओके, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. यहाँ पे क्या है, इन फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट्स ऑफ x1, इन सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x2, and in third column coefficients of x3. Okay, now also the capital X is the set of unknowns, that is x1 x2 and x3. This is your set capital X. Also the capital B is the constant matrix. capital B क्या है हमारे पास, constant matrix. Okay, this 4 9 3 4 9 3. Okay, this is your given system of linear equations. Here capital A is called coefficient matrix, then capital X is called the set of unknowns, and capital B is called constant matrix. Okay, suppose this is your equation first, Ax is equal to b. Now consider capital A is equal to L into U. Suppose this is your equation second. Consider capital A is equal to L into U. Here
here L is lower triangular matrix. L is lower triangular matrix. In last lecture we have to discuss about this. Okay, L क्या जाएगा? L is 1 0 0 correct. Then L21 1 0 correct. And यहाँ पे L31 L32 and 0. This is your capital L. Also U is upper triangular matrix. U is upper triangular matrix. Okay, U is upper triangular matrix. तो क्या जाएगा? U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 and U33 correct. Here this capital A is square matrix correct of order 3. That's why we will select DL as lower triangular matrix of order 3. Also U is upper triangular matrix of order 3. Okay, तो देखो this equation is very important. Any square matrix can be written as the product of lower triangular matrix and upper triangular matrix. We have to use this result here. Okay, तो क्या जाएगा? Here is this is your lower triangular matrix and U is your upper triangular matrix. Now do this multiplication, we get the value of L and value of U. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? Right, ये equation 2 becomes क्या जाएगा? equation 2 the value of capital A की वैल्यू क्या है? पुट कर दो वैल्यू ऑफ A is matrix A is 2 2 3, A is 2 2 3, then second row 4 minus 2 1, 4 minus 2 1, and third row 1 5 4, third row 1 5 4. Okay, this is your matrix A is equal to L into U, दोनों का प्रोडक्ट L into U. I will write the matrix L also matrix U. Okay, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, स्टेप ज़्यादा है. तो मैट्रिक्स L क्या है? L is 1 0 0, L21 0 1 0, L31 L32 1. This is your matrix L. Okay, then matrix U. U क्या है? U is upper triangular matrix, that is U is U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33. This is your matrix U. Okay, put value of matrix L also value of matrix U. Then do this multiplication. Okay, matrix multiplication ये पार्ट सब आपको मालूम है. How to multiply matrix by matrix? Okay, this is 2 2 3 4 minus 2 1 1 5 4. Okay, 1 5 4 is equal to do this multiplication. यहाँ पे हमें क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, तो क्या जाएगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, वी गेट फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो क्या जाएगा? 1 इंटू U11 क्या जाएगा? 1 इंटू U11, दिस इज U11, देन 0 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 0 0. दिस इज योर फर्स्ट एंट्री. देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड कॉलम, तो क्या जाएगा? 1 इंटू U12, तो क्या जाएगा वो? U12. ओके, देन सेम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, क्या जाएगा? U13, 1 इंटू दिस U13 बचेगा, बाकी सब 0. U13, दिस इज योर फर्स्ट रो. ओके, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, क्या जाएगा? L21 इंटू U11, तो क्या जाएगा? L21 इंटू U11. ओके, U11. ओके, प्लस 1 इंटू 0 क्या जाएगा? 0, प्लस 0 इंटू 0 क्या जाएगा? 0. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या जाएगा? L21 इंटू दिस L21 इंटू U12 प्लस 1 इंटू U22, तो वो क्या मिलेगा? प्लस U22. ओके, प्लस 0 इंटू दिस, तो वो क्या जाएगा? 0. देन सेम सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, क्या जाएगा यहाँ पे? L21 U13 L21 U13 प्लस
1 इंटू U23, तो क्या जाएगा U23 लास्ट में क्या जाएगा 0. ओके, देन सेम थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो क्या जाएगा L31 इंटू U11, तो क्या जाएगा L31 U11. ओके, देन सेम दिस थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड कॉलम, तो क्या जाएगा L31 इंटू U12 प्लस L32 U22 प्लस 1 इंटू 0, दिस इज 0. ओके, देन सेम दिस थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, क्या मिलेगा थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम L31 इंटू U13, क्या जाएगा L31 इंटू U13. ओके, प्लस दिस सेकंड एलिमेंट L32 इंटू U23 इंटू U23. ओके, प्लस 1 इंटू दिस, तो क्या जाएगा प्लस U33. दिस इज योर simple multiplication. Okay, this is your simple multiplication, that is L into U. Okay, that is the product of upper and lower triangular matrices, the product of upper and lower triangular matrices. Okay, now compare these two, we have to find value of this constant. Okay, we have to find value of this constant. By comparison, tell me वैल्यू ऑफ U11 क्या मिलेगा, कंपेयर दिस टू मैट्राइसेस आर इक्वल, कब आते हैं इक्वल, व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट U11, तो U11 क्या मिलेगा U11 इज इक्वल टू 2. ओके, U11 इज इक्वल टू 2. ओके, देन सेकंड एलिमेंट क्या है 2, वो क्या है U12, वी गेट आल्सो U12 इज इक्वल टू 2. Also U13 is equal to 3. U13 is equal to 3. Okay, we get this 3 element directly. Okay, then देखो यहाँ पे L21 into U11. Okay, यहाँ पे क्या है L21 into U11, उसकी वैल्यू क्या है 4, तो क्या जाएगा सेकेंड एलिमेंट L21 into U11 इज इक्वल टू क्या है 4, बट U11 आपके पास है, U11 क्या है 2, U11 क्या है 2, तो उसकी जगह 2 पुट किया, तो 2 गोज टू दिस साइड, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2, तो वी गेट L21 इज इक्वल टू 2. L21 इज इक्वल टू 2. ऑल्सो यहाँ पे देखो L31 इंटू U11, ओके, L31 इंटू U11, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो क्या जाएगा वो L31 इंटू U11 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, करेक्ट. बट U11 की वैल्यू क्या है आपके पास, U11 इज 2, तो उसकी जगह 2 पुट किया, तो L31 क्या मिलेगा, दिस 2 गोज टू दिस साइड, वी गेट L31 इज इक्वल टू 1/2. देन सेम वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज हियर, यहाँ पे जो भी है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सबकी. हाउ टू फाइंड वैल्यू समझ में आ गया, आई विल फाइंड दिस वैल्यू, बाकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. कंपेयर दिस टू वी गेट वैल्यूज. हियर आई विल राइट रिमेनिंग वैल्यूज डायरेक्टली. अभी आपके पास कौन सी वैल्यू है, U11 है, U12 है, U13 है, देन L21 है, देन L31 है, करेक्ट. तो कौन सी वैल्यू नहीं है अभी आपके पास, देखो L21 आ गया, देन L31 आ गया, देन L32 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एंड दिस. ओके, फाइंड ऑल दिस वैल्यू बाय यूजिंग द सेम. ओके, आई विल राइट दिस वैल्यूज डायरेक्टली up to L31 we get. Now U22 is -6. U22 is equal to -6. Okay, how to find value of U22 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कंपेयर दिस टू, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 इज इक्वल टू दिस. ओके, U22, तो U12 आपके पास है, L21 आपके पास है, U12 आपके पास है, L21 आपके पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो उसमें, कंपेयर विद दिस, वी गेट वैल्यू ऑफ U22. ओके, देन सेम वी हैव टू फाइंड ऑल दिस रिमेनिंग वैल्यू बाय यूजिंग दिस सेम लॉजिक. ऑल्सो वी गेट U23, we get U23 is equal to -5. Also we get
L32 and L32 is minus 2 by 3 and last value U33 and U33 is minus 5 by 6. U33 is equal to minus 5 by 6. Okay, these are the values and this is your first target. क्या करना है देखो एक बार, I will repeat up to this point. This is your given system of linear equation. We have to find solution of this system of linear equation by using the triangular factorization method, okay, or by using LU method. Both are same, okay. So given system of equation x is equal to b, okay, x is equal to b. After that, here capital A is this coefficient matrix, x is set of unknowns and b is this constant matrix. Now this is your very important step. Consider A is equal to L into U. Consider A is equal to L into U. L is lower triangular matrix and U is upper triangular matrix. This is your equation second. Okay, L is this, जो लिखा है U is this. Now equation 2 becomes, अभी उसमें क्या कर दो, L की वैल्यू, U की वैल्यू एंड A की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ L एंड वैल्यू ऑफ U. देन टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, वी गेट दिस. नाउ कंपेयर दिस टू आर सेम, उसका मीनिंग क्या है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. दोनों का कंपेरिजन किया है, करना है आपको, फ्रॉम दिस वी गेट दिस वैल्यूज. ओके, नाउ हियर आई विल राइट द मैट्रिक्स L. अभी देखो मैट्रिक्स L क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स L 1 0 0 1 0 0. देन U21 की वैल्यू क्या है, सॉरी L21 दिस इज 2, L21 is 2, then 1 0. देन L31 क्या है, 1 by 2. देन L32 क्या है, L32 minus 2 by 3. लास्ट में क्या जाएगा, हियर इज 1, डायगोनल पे क्या है 1. ओके, हियर इज 1. नाउ मैट्रिक्स U. मैट्रिक्स U क्या है देखो, U11 आपके पास है, U11, U12 एंड U13. उसकी वैल्यू क्या है, 2 2 3. ओके, देन 0. देन U22 क्या मिलेगा, -6. देन U23 हाँ, U23 क्या है, -5. ओके, देन 0 0 U33 0 and U33 is -5 by 6. This is your matrix U. Up to this point कोई डाउट है? First find values of L and U. This is your first target. Okay, up to this point कोई डाउट है? Okay, no doubt. Then I will remove this part. तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या है देखो, इक्वेशन फर्स्ट इज x is equal to b and equation second is A is equal to L into U. This is your equation second. Okay, I will continue from this equation second. ध्यान दीजिए सब लोग, I will write these equations outside. Okay, this L and U are important, वो हमें लगता है लास्ट तक. तो देखो, this is your equation first, x is equal to b. ओके, एंड इक्वेशन सेकंड क्या था, A is equal to L into U. A is equal to L into U. This is your equation second, correct? Equation second. Now put value of equation second in equation first. Okay, put equation 2 in equation first. We get क्या मिलेगा, अभी देखो एक ही जगह वैल्यू पुट कर दो, L U x is equal to b. Suppose this is your equation third. L U x is equal to b. Okay, L U x is equal to b. Now consider the new set. Consider z is equal to u into x. Consider z is equal to u into x. Here
Z इज कॉलम मैट्रिक्स, Z1 Z2 Z3 उसका ट्रांसपोज. ओके, Z इज कॉलम मैट्रिक्स, Z1 Z2 Z3. ओके, Z1 Z2 Z3, दिस इज योर Z. नाउ पुट वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन थर्ड. पुट वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन थर्ड. ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. A is equal to L into U. This is your equation second. Put value of A in equation first. We get LU x is equal to B. Now set Z as UX. Set Z as UX. We get Z is equal to UX. Put करना है हमें वो. तो put in equation 3. तो equation 3 becomes equation 3 क्या मिलेगा? L into Z is equal to B. LZ इज इक्वल टू बी. ध्यान दीजिए सब लोग, UX की जगह क्या पुट किया हमने? Z. ओके, तो वी गेट LZ इज इक्वल टू बी. नाउ पुट वैल्यू ऑफ L क्या है? 1 0 0 2 1 0 1/2 -2/3 1. ओके, इंटू Z इज कॉलम मैट्रिक्स, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू B इज गिवन मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट जो इक्वेशन में दिया था. बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? मैट्रिक्स बी जो हमने लिखा था पहले, वहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या था? बी इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू के सामने वैल्यूज. बी इज मैट्रिक्स बी इज 4 9 3 करेक्ट. दिस इज योर मैट्रिक्स बी, वो गिवन है. तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा? 4 9 3. दिस इज योर मैट्रिक्स बी. ओके, now do this multiplication and find values of Z1 Z2 Z3. फर्स्ट टाइप आपका टारगेट क्या है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ Z1 Z2 Z3 बाय यूजिंग दिस. तो क्या मिलेगा? देखो, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इंटू Z1 क्या मिलेगा? Z1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4. Z1 इज इक्वल टू 4 करेक्ट. नाउ मल्टीप्लाई दिस सेकंड 2 इंटू Z1 क्या मिलेगा? 2Z1 प्लस 1 इंटू Z2 क्या जाएगा? Z2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9. बट Z1 की वैल्यू क्या है? 4. उसमें 4 पुट किया तो क्या जाएगा? 4 इंटू 2 8 गोज टू दिस साइड. तो क्या बचेगा? 9 माइनस 8 दिस इज 1. तो ये Z2 इज इक्वल टू 1. ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे क्या है? 1/2 Z1 माइनस 2/3 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3. ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4. तो 4/2 यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस Z2 की वैल्यू 1, दिस इज 2/3 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3. नाउ सॉल्व दिस. यहाँ पे क्या जाएगा? टेक दिस LCM. 2 इंटू 3 क्या जाएगा? 6 minus 2 4. This is 4/3 and this 4/3 goes to this side. I will write here Z3 is equal to 3 minus, हाँ यहाँ पे क्या बचेगा? 4/3 आफ्टर फाइंडिंग LCM. करेक्ट, आफ्टर फाइंडिंग LCM we get 4/3. 2 into 3 6 minus 2 4 divided by 3. This belongs to पॉजिटिव. यहाँ पे जाने के बाद क्या जाएगा? नेगेटिव. दिस इज 4/3. Now we get Z3 as Z3 is equal to क्या मिलेगा? Z3 3 into 3 9 minus 4 6 divided by 2 करेक्ट. 3 into 3 9 minus 4 5 divided by 3. Sorry, this is your 5 divided by 3. Z3 is 5 divided by 3. Up to this point सबको समझ में आ गया? First find the value of Z1 Z2 Z3. Okay, this is your first target, finding value of Z1 Z2 Z3. Okay, अभी आपके पास Z मिल गया. Then from this equation, or suppose this is your equation 4. Now equation 4 becomes equation 4 क्या है? ux इज इक्वल टू Z. तो क्या जाएगा? ux इज इक्वल टू Z. नाउ पुट वैल्यू ऑफ u, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ Z. तो क्या जाएगा? u की वैल्यू क्या है हमारे पास? u इज 2, यहाँ पे है u 2 2 3
0 -6 -5 0 0 -5/6 इंटू एक्स. एक्स क्या है? सेट ऑफ अननोन्स. एक्स इज सेट ऑफ अननोन, दैट इज x1 x2 x3. तो क्या जाएगा? दिस इज x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू z. z इज गिवन. z की वैल्यू क्या है? z1 z2 z3. दिस इज योर z, करेक्ट. z1 z2 z3. तो z1 क्या है? 4, z2 इज 2, दिस इज 4, z2 क्या है? 1 एंड z3 क्या है? 5/3. 5/3. ओके, अभी उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे एल एंड यू का. लास्टली वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x1 x2 x3. तो क्या जाएगा यहाँ पे? टेक दिस मल्टीप्लीकेशन, वी गेट 2 इंटू x1, दिस इज 2x1, 2 इंटू x2 प्लस में प्लस 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 इज इक्वल टू 4. नाउ फ्रॉम सेकंड x1 क्या जाएगा यहाँ पे? माइनस, हाँ दिस -6x2 -5x3 is equal to 1, and from last equation -5/6x3 is equal to 5/3, correct. Now from last equation we get value of x3. तो क्या जाएगा x3? this 5 get cancel, correct. this 6 goes to this side, क्या जाएगा? 6/3, this is 2. we get -x3 is equal to 2, implies x3 is -2. we get x3 क्या मिल गया? -2. now put value of x3 in second equation, we get value of x2. तो क्या जाएगा? -6x2 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 क्या जाएगा? 10 इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ दिस 10 गोज टू दिस साइड, क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या जाएगा? -6x2 इज इक्वल टू -9, करेक्ट. 10 गोज टू दिस साइड. नाउ दिस इज माइनस माइनस गेट कैंसल, वी गेट 6 डिवाइड बाई दिस 9. तो क्या क्या जाएगा? x2, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2, x2 इज 3 डिवाइड बाई 2, करेक्ट. 9/6, 9/6, this is 3 divided by 2. Now put value of x1 and x2, put value of this x3 and x2 in equation first. अभी क्या करो? फर्स्ट में उसकी वैल्यू पुट कर दो. तो क्या जाएगा? also 2x1 प्लस दिस इज x2, 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ x2 इज 3/2 प्लस 3 इंटू x3 इज -2 इज इक्वल टू 4. नाउ सिंप्लीफाई दिस इज 2x1, यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस 2 गेट कैंसल, 3 -6 इज इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज, हाँ यहाँ पे क्या जाएगा? -6 प्लस 3, दिस इज -3 गोज टू दिस साइड. तो क्या जाएगा? +7. ओके, 7 यहाँ पे क्या है? 2x1. तो x1 क्या जाएगा? x1 इज इक्वल टू 7/2. x1 is equal to 7/2. So this is your set of unknowns that are the value of x1, x2, x3. Okay, so this is example of the triangular factorization method. How to find? समझ में आ गया सबको? तो देखो फर्स्ट टारगेट क्या है? दिस इज योर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x is equal to b, then write a as a is equal to l into u. Okay, then from this find value of l and u. After that put value of this a in equation first, we get LUX is equal to B, then set UX is equal to Z. Z is column matrix. Then LZ is equal to B. Find value of Z. एक बार आपको Z मिल गया, then put value of Z and U in that equation, we get the values of x1, x2, x3. Okay.